Welcome friends. Now we will obtain the relation for non-conducting media. Obtain the equation of plane wave. Prove that the intrinsic impedance of medium is mu times phase velocity of wave, and show that magnetic field H is perpendicular to electric field E. I mean, this wave is electromagnetic wave. Now what will happen? We will write here Maxwell's relation first of all. Then from Maxwell's relation we will derive the differential equation, and this type of differential equation will be called as this type of differential equation. This type of differential equation is called as a plane wave equation for non-conducting media. Okay, then after that we will write the solution, and from solution, okay, we will prove that E0 by H0, okay, E0 by H0, E0 by B0 is called intrinsic impedance, and we will prove this, and also prove that both E and B are, or E or H are mutually perpendicular to each other and also propagating perpendicular to direction of wave propagation. ये सब चीज है हम प्रूव करेंगे. First of all friends, okay, what is the first equation? Divergence of E equal to, for non-conducting media, suppose this one is for a vacuum. आप imagine करो. So divergence dot D equal to rho, or D equal to epsilon into E, okay, or epsilon 0 into E equal to rho. Okay, here divergence of B equal to 0. Here curl of E equal to minus del B by del T, and curl of B equal to mu into J plus mu del T by del T. These are the equation for a non-conducting media. Mu is the permeability of a non-conducting medium. Okay, epsilon is the permittivity of a non-conducting medium. Now, but what is the condition for non-conducting media? For non-conducting media, current density J or charge density rho equal to 0. Also, you can write here B equal to mu into H. So these equations reduces like this: divergence of E, because epsilon into E, okay, epsilon comes in denominator, again will be equal to 0. So divergence of E equal to 0 equation, divergence of B equal to 0, curl of E equal to minus del B by del T, and my friend, you should write here J equal to 0, because for non-conducting media. So fourth equation or fourth relation Maxwell's can be written like this: curl of B, okay, mu epsilon del E by del T, mu epsilon del E by del T. ये हमें लिखना है. कंडक्टिंग मीडिया में ये 0 नहीं होगा, मगर यहाँ हमको क्या दिया गया है? नॉन कंडक्टिंग मीडिया. फॉर नॉन कंडक्टिंग मीडिया, ओके, so J will be equal to 0 like this. Now take the curl of equation 2G in both side. ये equation G है, Maxwell relation twice G, तो इस यहाँ भी कर लेंगे, यहाँ भी कर लेंगे. Clear? Take the curl of both side this equation 2G. So curl of E equal to minus del by del T curl of B. Now curl of B तो यहाँ भी है, mu epsilon del E by del T हम लिख लेंगे. Clear? ये इंट्रोड्यूस हो गया. तो बाद में हमको क्या मिला? आपको मालूम है कर्ल ऑफ E इक्वल टू, ओके, डेल्टा डॉट डाइवर्जेंस ऑफ E माइनस लाप्लासियन ऑफ E. आई मीन ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ E, या डॉट नहीं हो सकता, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ E माइनस लाप्लासियन ऑफ E. ये कर्ल ऑफ E का ये क्या है? ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, आपको याद रखना है. कर्ल ऑफ E इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ E माइनस लाप्लासियन ऑफ E. नाउ व्हाट इज डाइवर्जेंस ऑफ E फॉर नॉन कंडक्टिंग मीडिया? डाइवर्जेंस ऑफ E नॉन कंडक्टिंग मीडिया इक्वल टू 0, तो यू शुड राइट हियर 0. हियर माइनस बिकम प्लस बोथ साइड, और ये इक्वेशन इधर आ गया तो अगेन माइनस हो गया. सो लाप्लासियन ऑफ E माइनस म्यू epsilon del square E by del T square equal to 0. Similarly, for magnetic field, Laplacian of B minus mu epsilon del square B by del T square equal to 0. So equation 3 and 4, in this way we have derived plane wave equation for non-conducting media from Maxwell's relation. ये इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ऑब्टेन किए, ओके, तो इसका सॉल्यूशन भी होगा. लेकिन आप जानते हो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखो, लाप्लासियन ऑफ साई माइनस म्यू
एप्सिलॉन डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर इक्वल टू 0 और म्यू एप्सिलॉन इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर बिकॉज यू नो दैट 1 अपॉन square root of mu 0 epsilon 0 equal to c. Similarly, here the velocity of a media in non-conducting medium. So in this way we can write it is similar to कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन 3 and इक्वेशन 4 are similar to wave equation, Laplacian of psi minus 1 upon v square del psi by del t square equal to 0. This equation are the equation is quantum mechanics. So solution of this इक्वेशन यू नो दैट इट इज सिमिलर टू दैट, इसका भी सॉल्यूशन है, यही होगा. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E0 e raised to I, k is the wave propagation vector, kx minus omega t. Similarly for B equal to B0 e raised to I kx minus omega t 5 and 6. इसका हम क्या लेंगे, हम पहले हम उसका देखो हमें कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत होगी इस दोनों पर से. देखो हमें ज़रूरत होगी डेल ई बाय डेल एक्स और डेल स्क्वायर ई बाय डेल एक्स स्क्वायर. आई मीन लाप्लासियन 2 बार उसका विकलन करना पड़ेगा स्पेस के प्रति. बाद में डेल ई बाय डेल टी एक बार, डेल स्क्वायर ई बाय डेल टी स्क्वायर दूसरी बार. इसका 2 बार हमें समय के प्रति विकलन करना पड़ेगा. वी शुड डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 2 टाइम्स. ओके हियर, सो ये भी मिल जाएगा हमें. ओके, सो इन दिस वे वी कैन राइट हियर. ओके, सो अगेन ये इक्वेशन कौन सा उठा लेते हैं हम, कर्ल ऑफ ई माइनस डेल बी बाय डेल टी. पहले ये लिख लेते हैं. लेट मी राइट हियर दिस इक्वेशन ट्वाइस जी. सो व्हाट इज कर्ल आई जे के del by del x del by del y del by del z ex ey ez equal to minus del by del t. What is the value of b? I bx plus j by plus k bz. Okay, but you know that here you know this one is a z direction, wave propagation is z direction. Our electric field is only variable in x direction. Magnetic field is only variable along y direction. Okay, so here please do remember here is a z, here is a x and here is a y. Okay, now you know that del by del x does not equal to 0, so del e by del x does not equal to 0, but del e by del y, del e by del z also equal to 0. So why I should write here 0 0 0 here. Okay, now so ये सब इक्वेशन है वो क्या हो गया, हमको ये वाला 0 होगा, ये वाला 0 होगा, यू नो वेरी वेल. नाउ I 0 0 तो 0 होगा, j कंपोनेंट माइनस j वाला ये होगा, k कंपोनेंट तो ये वाला होगा. ओके, इस तरह से हम लिख सकते हैं. इक्वल टू ये वाला राइट हैंड साइड हम लिख सकते हैं. नाउ कंपेयर k कंपोनेंट. आप बोलेंगे मेरे को j कंपोनेंट कंपेयर करना है, यू शुड कंपेयर, नो माइंड. ओके, सो here compare k component from 5 and 6 ऊपर वाले. तो अब k component में क्या है, ये वाला है k del by del x e y. ओके, इसका k component क्या है, ये del by del t b z. ओके, ये k component है, बस माइनस साइन विल बी देयर, तो माइनस साइन विल बी देयर. अब क्या करना है, del by del x of e y component. तो यहाँ e है, देखो यहाँ e है. ओके, इसको ई वाई कर दो, ई वाई कर दो तो यहाँ E0 y आएगा. इसका x के प्रति विकलन करो, यू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x बिकॉज डेल बाय डेल x. तो डेल बाय डेल x करें तो क्या होगा, ओके, I इंटू के E0 e रेज़ टू I kx माइनस ओमेगा टी मिलेगा. अगेन I इंटू के बाहर निकले और ये तो ये सारी वैल्यू की कीमत तो E है, तो हियर E0 y जो हमने वैल्यू निकाली उसकी वैल्यू क्या होगी, E0 और E0 y जो भी मिली I इंटू के इंटू E, ये वाली वैल्यू मिली, ये I के. और E0 सिर्फ आप कर सकते हो या E0 y लिख सकते हो या E इटसेल्फ आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं. चलो I के इंटू E. इधर देखो माइनस डेल बाय डेल टी ऑफ बी जेड. ओके, इधर डेल बाय डेल टी ओके ऑफ बी जेड. तो टी के प्रति विकलन करो, टी के प्रति डिफरेंशिएशन करो.
ओके, तो क्या मिलेगा इसको आपको I इंटू ओमेगा बाहर निकलेगा, सिर्फ I ओमेगा बी मिलेगा। तो देखो हमें I ओमेगा बी मिला। क्लियर? नाउ ये और दे E0y और E डिवाइडेड बाई बी, क्या करोगे इसका आप इसका रेशियो ले लो। उस रेशियो का क्या बोलेंगे हम, E0y दिस एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई दिस एम्पलीट्यूड, इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड बाई मैग्नेट्यूड एम्पलीट्यूड इक्वल टू Z0। इसको हम कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस और इंट्रिंसिक इंपीडेंस ऑफ द नॉन कंडक्टिंग मीडिया बोलेंगे। तो ये हमको वैल्यू मिल गई। ये वैल्यू क्या है, तो ये वाला है ना, ये के, ये डिनोमिनेटर में आ गया। तो ओमेगा बाई के, देखो ओमेगा बाई के को हम फेस वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, सो Z0 इक्वल टू V, ओके, बट यू नो दैट B इक्वल टू म्यू इंटू H, तो एक म्यू और भी बाहर निकलेगा इधर से। सो Z0 इक्वल टू, ओके, Z0 इक्वल टू हमें मालूम है इधर म्यू इंटू V होगा। क्या होगा, Z0 इक्वल टू ये यहाँ म्यू इंटू H, यहाँ म्यू इंटू H लिखेंगे। ओके, तो यहाँ हमको E0 बाई H लगाएंगे तो म्यू इधर आ जाएगा। ओके, सो Z0 इक्वल टू म्यू इंटू V। सो इन दिस वे वी कैन राइट द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इज म्यू टाइम्स द वेलोसिटी, ओके, फेस वेलोसिटी ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग मीडिया। ये हम प्रूव कर सकते हैं। बाद में हमको ये भी पूछा गया है कि प्रूव दैट E एंड B म्यूचुअली रिमेनिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखो आप इसमें पहला इक्वेशन डेल्टा डॉट E इक्वल टू 0, मैंने क्या बोला है आपको, व्हेन डेल्टा टेंस टू के माइनस डेल बाय डेल टी टेंस टू ओमेगा। डेल्टा का यूनिट क्या है, MKS, ओके, I डेल बाय डेल एक्स पर सेंटीमीटर, K इक्वल टू ट्वाइस पाई बाई लेमड़ा, ओके, सो अगेन पर सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ हम रिप्लेस कर सके तो सामने हमको माइनस डेल बाय डेल टी आई मीन पर सेकंड इक्वल टू ओमेगा मीन्स रेडियन पर सेकंड। तो ये भी हम एक दूसरे से हम एक्सचेंज कर सकते हैं दोनों ऑपरेटर को। माइनस साइन क्यों है, व्हेन द वेव प्रोपेगेट, ओके, एनर्जी इज डिक्रीजिंग, सो माइनस साइन विल बी देयर, टाइम इज पासिंग, सो माइनस साइन विल बी देयर। नाउ सो K dot delta dot E equal to 0 means we should write instead of delta K dot E equal to 0 means K is perpendicular to E. Again delta dot H equal to 0 means K dot H equal to 0 means K is perpendicular to E. So in this way we can write E भी K से perpendicular है, E is perpendicular to E, also H और B also perpendicular to K. Okay, that means both E, H and K are mutually perpendicular to each other. This type of wave is called as a transverse wave. ये वेव को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। ओके, और भी एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, देखो इधर, ओके, अब कोई भी चीज देख लो इधर, हाँ, K क्रॉस E, ओके, K क्रॉस E इक्वल टू ओमेगा इंटू बी। K और E दोनों एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। ओमेगा माइनस डेल बाय डेल टी इक्वल टू ओमेगा, ये यहाँ के डाला तो हमें यहाँ माइनस डेल बाय डेल टी इक्वल टू ओमेगा लिखना पड़ेगा। ओके, सो ए क्रॉस बी इक्वल टू सी अगर होता तो सी इज परपेंडिकुलर टू बोथ सी इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड ए वेक्टर। ओके, सो इन दिस वे वी कैन राइट के इज परपेंडिकुलर टू ई, के इज परपेंडिकुलर टू बी, बी इज परपेंडिकुलर टू ई, बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू हियर के। In this way, K, E or B are mutually perpendicular to each other. So in this way, this wave is called as a transverse wave. So here we have discussed, okay, wave is propagating into non-conducting media, and we have derived the wave equation. Okay, and also from solution we have proved intrinsic characteristic impedance. Okay, and we have also proved E, H or E and B and K are mutually perpendicular to each other. Thank you very much.